السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایلیمنٹس آف سی، مطلب سی لینگویج کے اندر جب آپ پروگرام بناتی ہیں تو اس پروگرام کے اندر کون کون سے کمپوننٹس یا کون کون سے ایلیمنٹس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ ان کمپوننٹس یا ایلیمنٹس کے بارے میں جان لیں گی تو سی لینگویج کے اندر پروگرام بنانا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے آئیڈینٹیفائرس۔ آئیڈینٹیفائرس نام سے ہی ظاہر ہے کہ کوئی ایسا نام جو آپ استعمال کرتے ہیں فار آئیڈینٹیفیکیشن۔ جیسے آپ کا نام ہے، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہوتا ہے نا۔ تو سی کے اندر بھی کچھ ایسے چیزیں ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، اسے ہم کہتے ہیں آئیڈینٹیفائرس۔ آئیڈینٹیفائرس آر the name used to represent variables, constants, types, functions and labels in the program۔ کہ پروگرام کے اندر یہ آگے آپ ہر چیز کی ڈیفینیشن آگے پڑھیں گے کہ ویریبل کیا ہوتے ہیں، کانسٹنٹ کیا ہوتے ہیں، ڈیٹا ٹائپس کیا ہوتی ہیں، فنکشنز کیا ہوتے ہیں۔ مطلب سی کے اندر آپ جو بھی چیز استعمال کرتی ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے فار آئیڈینٹیفیکیشن، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ آئیڈینٹیفائرس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائرس۔ اب یہ آئیڈینٹیفائرس کس قسم کے ہوتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ کا مطلب ہوتا ہے پری ڈیفائنڈ، مطلب ایسے آئیڈینٹیفائرس جن کا مطلب یا میننگ پہلے سے ڈیفائن ہوا ہے سی لینگویج کے اندر، ان کو آپ کسی دوسرے پرپس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان آئیڈینٹیفائرس کو، ان اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائرس کو کسی اور مقصد کے لیے ڈیفائن کر دیتے ہیں یا ری ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کا جو اوریجنل مقصد ہوتا ہے، اس کے جو اوریجنل میننگ پہلے سے جو ڈیفائن ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کو پھر اس اوریجنل میننگ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے سی کے اندر جو اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ پری ڈیفائن ہیں، انہیں آپ نے ویسے ہی استعمال کرنا ہے جس مقصد کے لیے وہ ڈیفائن ہوئے ہیں۔ جیسے کہ یہ اسکین stdio.h، مطلب یہ پہلے سے ڈیفائن ہوئے ہیں، ان کا مقصد پہلے سے ڈیفائن ہوا ہے، آپ نے صرف انہی مقصد کے لیے ہی انہیں استعمال کرنا ہے۔ آگے مطلب سی کے اندر جب آپ پروگرام بناتی جائیں گی تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چلتی جائیں گی، مطلب رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کو۔ یوزر ڈیفائن آئیڈینٹیفائرس مطلب ایک ہو گیا اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائرس جو سی کے اندر پہلے سے ڈیفائن ہوئے ہیں، اور یوزر ڈیفائنڈ آئیڈینٹیفائر مطلب ایسے آئیڈینٹیفائرس جو آپ ڈیفائن کریں گی، انہیں ہم یوزر آئیڈینٹیفائرس کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیں کی ورڈس۔ کی ورڈ کو ریزرو ورڈ بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائر کی طرح سے ہی ہوتے ہیں۔ مطلب ایسے ورڈس جن کی میننگ سی لینگویج کے اندر پہلے سے ڈیفائن ہوئے ہیں، آپ نے انہیں اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، تو ایسے ورڈس کو ہم کی ورڈز یا ریزرو ورڈز کہتے ہیں۔ ہر لینگویج کے اندر کی ورڈز یا ریزرو ورڈ موجود ہوتے ہیں۔ سی لینگویج کے اندر بھی ٹوٹل 32 کی ورڈز ہیں جو کہ آلریڈی ڈیفائن ہیں۔ ان کی لسٹ بھی مطلب ہے آگے، اگر آپ آئی ٹی سیریز کی سی لینگویج کی بک لیں گے، یہ تو ٹیکسٹ بک ہے نا، تو اگر آپ آئی ٹی سیریز کی بک استعمال کرتے ہیں اس میں پوری لسٹ بنی ہوئی ہے کی ورڈز کی، جیسے کہ مین ہے، فار ہے، وائل ہے، ڈو ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ ریزرو ورڈز ہیں۔ تو یہ ریزرو ورڈ آپ کے این سی کی ورڈز ہیں۔ این سی کا مطلب ہوتا ہے، این سی ہے ایبریویشن امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ، یہ آرگنائزیشن کا نام ہے جس نے سی لینگویج کے رول ڈیزائن کیے ہیں۔ تو یہ کی ورڈز بھی این سی کے ہی ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم انہیں این سی سی کی ورڈز کہتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کی ورڈز کی ڈیفینیشن کو۔ کی ورڈز آر ریزرو ورڈز کین ناٹ بی ری ڈیفائنڈ ان دا پروگرام، مطلب آپ انہیں ری ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آلریڈی ڈیفائنڈ ہیں۔ اب آگے ہے ویریبلس۔ پروگرام کے اندر آپ دو طرح کی کوانٹیٹیز استعمال کرتے ہیں، دو طرح کی ویلیوز کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جو چینج ہوتی رہتی ہیں، اور کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جن کی جو کوانٹٹی یا ویلیو فکس ہوتی ہے۔ اب ایک کو ہم ویریبل کہتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کانسٹنٹ۔ ویریبل کا مطلب ہوتا ہے ویریبل، بیسیکلی لفظ ویری سے نکلا ہے، اور ویری کا مطلب ہوتا ہے چینج ہونا۔ تو ویریبل ایسی کوانٹیٹیز یا ایسی ویلیوز ہوتی ہیں جن کی ویلیوز پروگرام کی ایگزیکیوشن کے دوران چینج ہوتی رہتی ہیں، انہیں ہم ویریبلس کہتے ہیں۔
वेरिएबल बेसिकली मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। मतलब आप देखें ना, यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये आपकी मेमोरी है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है ना, जहाँ पे आपका डाटा जाके स्टोर होता है, और मेमोरी आपकी मुख्तलिफ लोकेशंस में डिवाइड हुई हुई होती है। आप फ़र्ज़ करें ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि ये मेमोरी है। मेमोरी के अंदर ये मुख्तलिफ लोकेशंस बनी हुई हैं, हर लोकेशन का ज़ाहिर है कोई ना कोई एड्रेस होता है। जैसे ये पहली लोकेशन है, इसका एड्रेस है 0000, दूसरी लोकेशन है उसका एड्रेस है 0001, तीसरी लोकेशन है उसका एड्रेस है 0002। इसी तरह से ये एड्रेसिंग चलती जा रही है। अब आप देखिए ये क्या है, ये वो एक्चुअल वैल्यू है जो आपने इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर की हुई है। तो इस मेमोरी लोकेशन को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल का जो लोकेशन है या जो एड्रेस है वो फिक्स रहेगा, अंदर जो वैल्यू है वो आप चेंज कर सकते हैं। मतलब अभी आपने 12 डाला हुआ है, बाद में जब आप इसकी वैल्यू अगर 50 कर देते हैं तो ये 12 खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और इसके अंदर 50 आके स्टोर हो जाएगा। मतलब वेरिएबल का मतलब ये है कि जो मतलब वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके एड्रेस या कोई नाम से और उसकी वैल्यू से। यहाँ पे देखिए उन्होंने इसी सेल को ही बड़ा करके दिखाया हुआ इस लोकेशन को कि VAR क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल है, और अंदर ये क्या है, कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स मीन वैल्यू है, डाटा है इस वेरिएबल की किस लोकेशन पे, 0002 लोकेशन पे। तो ये लोकेशन सेम रहेगी, वेरिएबल का नाम भी सेम रहेगा, लेकिन ये अंदर जो वैल्यू है या जो कंटेंट्स हैं वेरिएबल के वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि नाम से ही ज़ाहिर है कि वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यू चेंज करना। अब डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन सी के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। सी इज़ अ स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज। मतलब इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल जितने भी आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं उनको इस्तेमाल करने से पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है, ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि ये आपके वेरिएबल के नाम हैं और आगे आप इन्हें प्रोग्राम में कहीं इस्तेमाल करेंगी। तो यहाँ पे देखें वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या है। सी के अंदर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, आप लिखते हैं डाटा टाइप और आगे थोड़ी सी स्पेस दे के वेरिएबल का नाम और एंड में सेमी कॉलन। और सेमी कॉलन आपको पता है कि हर स्टेटमेंट के एंड पे आप लगाते हैं, इसे डिलिमिटर भी कहते हैं। तो सिंपल सा तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। डाटा टाइप के मतलब आप ये जो वेरिएबल का नाम है इस वेरिएबल के अंदर किस किस्म की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें एग्जांपल भी दी हुई है, इंट आगे स्पेस दे के KGS। KGS क्या है, वेरिएबल का नाम है और उसकी डाटा टाइप इंट। इंट का मतलब है इंटीजर। इंटीजर ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनमें कोई इशारे वगैरह नहीं होता, होल नंबर होते हैं। जैसे 10 है, 15 है, 12 है, जिसमें कोई इशारे का साइन नहीं है, वो आपके इंटीजर कहलाते हैं। और इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इंट और आगे वेरिएबल का नाम। इसका मतलब है कि इस वेरिएबल के अंदर आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है डबल और स्पेस दे के लेंथ। डबल आपकी इशारे वाली वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। मतलब जैसे 10.5, 16.52, इस किस्म की इशारा वाली वैल्यू स्टोर करने के लिए आप डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं डबल। आगे पूरा एक टॉपिक है कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। और ये लेंथ क्या है, वेरिएबल का नाम है। इसका मतलब है इस वेरिएबल के अंदर आप इशारे वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब आपके ये अपने ऊपर है, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर रखते हैं या डबल रखते हैं। और भी बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं जो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें इंट वॉल्यूम, और ये CHAR ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर को शॉर्ट करके लिखा हुआ है CHAR, और आगे ये वेरिएबल का नाम है। इसका मतलब है कि CH के अंदर आप क्या स्टोर कर सकेंगे, कैरेक्टर। मतलब $, BS, मतलब कोई भी कैरेक्टर आप CH के अंदर स्टोर कर सकेंगे। तो इसे वेरिएबल को डिफ़ाइन करना भी कहते हैं। मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करना मीन वेरिएबल को डिफ़ाइन करना। उसके बाद है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ जब आप उसे कोई वैल्यू भी दे देते हैं उसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करना कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ना, इंट डाटा टाइप है और स्पेस दे के काउंट और उसके बाद सेमी कॉलन, ठीक है। ये इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। और यहाँ पे देखिए काउंट इज़ इक्वल टू 125। इसका मतलब है कि इस वेरिएबल को हमने क्या वैल्यू दे दी है, 125। इसे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ भी वैल्यू दे सकते हैं। इस स्टेटमेंट को देखें, फ्लोट स्पेस दे के वेट इज़ इक्वल टू 75.8।
यहाँ तक देखें, ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन है, ये डाटा टाइप और आगे वेरिएबल का नाम, और इक्वल करके जब आप वैल्यू दे देते हैं, मतलब वेरिएबल का नाम इज़ इक्वल टू और आगे वैल्यू, तो इसे हम वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपने दोनों काम एक साथ कर दिए हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है और साथ ही उसे वैल्यू भी दे देती है। इसे हम कहते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। फ्लोट क्या है, ये भी मतलब इशारा वाली वैल्यूज़ के लिए होता है। उसके बाद है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। हम वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब वेरिएबल का नाम हम क्या रखेंगे, मतलब वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ये कुछ रूल्स हैं जो आपको वेरिएबल का नाम लिखते हुए फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो वेरिएबल क्या करेगा, आपके प्रोग्राम के अंदर एरर देगा अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए जब आप वेरिएबल का कोई नाम रखते हैं तो उस नाम को रखने के लिए रूल कौन से हैं। सबसे पहला रूल ये है कि वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब आपके वेरिएबल के नाम के अंदर लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, और अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ एक अलाउ है, वो है अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब वेरिएबल के नाम के अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, और अंडरस्कोर भी हो सकता है। दूसरा रूल क्या है कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ नेम मस्ट बी अ लेटर, मतलब आपके वेरिएबल के नाम का जो पहला कैरेक्टर है वो लेटर होना चाहिए, मतलब ABC, मतलब कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, आप अपने वेरिएबल के नाम को किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखें, आपने लिखा हुआ है 9 विनर। अब आप देखें वेरिएबल के नाम शुरू में आपने 9 लिख दिया, ये तो डिजिट है, इसलिए ये क्या करेगा, आपको एरर देगा। हाँ, अगर आप लिखते विनर 9 तो पहला जो कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट होता, इस वजह से वो ठीक हो जाता, मतलब विनर 9 आप डिक्लेयर कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि दूसरा रूल ये है कि वेरिएबल के नाम का जो पहला कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे पीछे आप डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहला जो है कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब सी क्या है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में ये फ़र्क करती है। तो इसलिए अगर आप एक वेरिएबल स्मॉल लेटर में लिखते हैं और उसी नाम का दूसरा वेरिएबल कैपिटल में लिखते हैं तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे यहाँ पे देखें, हमने COUNT, काउंट एक वेरिएबल का नाम है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, और ये COUNT है कैपिटल में। इसका मतलब है ये डुप्लीकेशन नहीं है। सी का जो कंपाइलर है वो इन्हें दो अलग वेरिएबल समझेगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, डिफरेंट उसमें लिखे हुए हैं। केस में सी कीवर्ड्स कैन नॉट बी, सी के अंदर जो रिजर्व वर्ड हैं उनको आप एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे इंट रिजर्व वर्ड है, वॉइड रिजर्व वर्ड है, तो ये आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता है कि कीवर्ड या रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, उनकी मीनिंग पहले से डिफाइन हुए होते हैं। अगर आप उनको एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो इसका मतलब है आप उसका मीनिंग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप नहीं कर सकते। इसलिए सी के जितने भी रिजर्व वर्ड हैं उन्हें आप एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगला रूल है कि वेरिएबल का नाम आपका मैक्सिमम 31 कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन 31 कैरेक्टर का तो ज़ाहिर है हम इतना बड़ा नाम रखते भी नहीं हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में बार बार इस्तेमाल करना होता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि वेरिएबल का नाम छोटा रखें और मीनिंगफुल रखें, मतलब नाम से पता चल जाए कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू होगी। जैसे फ़र्ज़ करें आप कोई रिज़ल्ट कार्ड बना रही हैं, आपने मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मैथ के लिए आप वेरिएबल का नाम मैथ रख दें, इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश भी रख सकती हैं, या ENG रख दें, मतलब शॉर्ट अगर करना है तो। कंप्यूटर के लिए आप वेरिएबल का नाम कंप्यूटर रख दें, या COMP भी रख सकती हैं। मतलब आप मैक्सिमम जो लिमिट है वेरिएबल का नाम रखने की वो है 31 कैरेक्टर, इससे बड़ा नहीं लिख सकते, लेकिन इससे छोटा आप रख सकते हैं। मतलब लेकिन कोशिश करें कि आपका नाम छोटा और मीनिंगफुल हो। ब्लैंक स्पेसेस नहीं लिख सकते आप, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग आप इकट्ठे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम और सॉल्विंग में स्पेस दी हुई है, स्पेस अलाउ नहीं है। आखिरी है रूल, अ वेरिएबल कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड फॉर वन डाटा टाइप, मतलब अगर आप एक वेरिएबल है A, उसको आपने इंट रखा हुआ है, तो उस A वेरिएबल को आप दोबारा फ्लोट नहीं रख सकती, क्योंकि कंपाइलर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि A को मैं इंटीजर समझूँ या A को मैं फ्लोट समझूँ। इसलिए आप एक वेरिएबल का नाम एक ही डाटा टाइप के लिए रखें, दूसरी डाटा टाइप के लिए अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसका नाम कोई और रख दें बेशक। ठीक है, तो इस वजह से ये हैं क्या है आपके पास
سی لینگویج کے اندر جو آپ ویریبل ڈکلیئر کرتی ہیں ان کا نام لکھنے کے یہ